Good morning, dear students. Today we'll be doing the fourth chapter, reproductive health. In today's lecture, we'll be talking about the artificial method of birth control. In the last lecture, we read about population explosion, stabilization, and the natural methods of birth control. As we know that to check the rate of population, many birth control measures are taken, in which some of the techniques are the natural techniques or natural methods, and some are artificial methods. These methods are called contraceptive methods. In the last lecture, we talked about the natural methods of contraceptive. In today's lecture, we'll talk about the artificial methods of contraceptive. In natural methods of contraceptive, we know about the periodic abstinence or the coitus interruption or the lactational amenorrhea. These are many natural methods in which we bar the process of fertilization and the sperm is not reaches the egg. So there is no fertilization involved and no zygote or embryo developed. In today's lecture, we basically focus on artificial methods of birth control, which is also very important for examination purpose. As we know that the natural methods of birth control is not perfect and there is always chances of false fertilization. नेचुरल मेथड्स में हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि हमेशा ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ हो जाए और कई बार इसमें चांसेस रहते हैं कि स्पर्म एग तक या सेकेंडरी oocyte तक पहुंच जाए और फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन हो जाए जिससे एक नया इन्फेंट जो है वो डेवलप हो जाए. सो नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज़ वेरी रिस्की. ये बहुत ही एक रिस्की प्रोसीजर है और कोई गारंटी नहीं है. सो इसलिए जो मेन मेथड्स होती हैं बर्थ कंट्रोल की वो आर्टिफिशियल मेथड्स ही होती हैं जो बहुत ही कॉमन भी हैं और बहुत ही हिट भी हैं. These artificial methods of birth control include the barrier methods, the intrauterine devices method, the oral administration method, and last one is the surgical method. These are some of the artificial methods of birth control. Let us talk first the barrier method. Barrier method, as it indicated by its name itself,
There is a barrier which can check the fertilization process. Barrier method usually include condoms, and the condoms are for both male and females. बट अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्डोम्स की, तो जो मेल कॉन्डोम्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं फीमेल कॉन्डोम्स के कंपैरेटिवली. एंड इन कॉन्डोम्स initially there is only a plastic barrier. Condoms were made, and इसको मेल कॉन्डम्स में पेनिस के ऊपर लगा दिया जाता था, और जिससे जो स्पर्म है वो इजैकुलेट नहीं हो सकते थे. लेकिन लेटर ऑन ड्यू टू सम एडवांसमेंट, जो न्यूली फॉर्म कॉन्डम्स हैं उनके ऊपर एक केमिकल की कोटिंग भी होती है. देयर प्रेजेंट अ केमिकल कोटिंग अराउंड द कॉन्डोम्स, और ये केमिकल कोटिंग क्या देखती है, स्पर्म की मोटिलिटी को ये ख़त्म कर देती है. स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो उसको मूवमेंट है, जो पावर है, उसे लॉस करने का काम करती है. ऐसे ही फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, लेकिन द यूज़ ऑफ फीमेल कॉन्डोम्स इज़ वेरी वेरी टफ, क्योंकि फीमेल कॉन्डोम्स को फीमेल के अंदर हमें प्लेस करना पड़ता है, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड होती है. कुछ और तरीके भी हैं, डायाफ्राम्स भी आते हैं, सम सर्विकल कैप्स आर ऑल्सो देयर, सम बॉल्स आर ऑल्सो देयर. ये सभी जो मेथड हैं, these are called the barrier method. The second method is the intrauterine devices, IUDs. In short form it is called IUDs. Intrauterine devices. These are the specific devices inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. सो वेजाइना में डॉक्टर्स या कोई भी एक्सपर्ट नर्स जो होंगी, इन आईयूडी को यूट्रस में प्लेस कर देती हैं वेजिना के थ्रू. और बैरियर मेथड और इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में एक बेसिक डिफरेंस है कि ये जो मेथड है इसमें वन टाइम यूज़, एक बार आप कॉन्डोम लेंगे तो उस कॉन्डोम का एक ही बार यूज़ हो सकता है. लेकिन इंट्रा यूट्रिन डिवाइस इसका इन्हांसमेंट है, एडवांसमेंट है, और इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ स्पेसिफिक आईयूडीज फीमेल के यूट्रस में प्लेस कर देती हैं. और ये जैसे एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, टीवीज़ के एड्स में भी बहुत आता है, जिसे हम बोलते हैं कॉपर टी. कॉपर टी जो है वो 10 ईयर्स तक काम करती है, 10 ईयर तक प्रेगनेंसी को रोक सकती है. सो इसमें कुछ डिवाइसेस थी, नॉर्मल प्लास्टिक शेप डिवाइसेस थी, और कुछ हैं जो फिर प्लास्टिक शेप का एडवांसमेंट हुआ तो बनी कॉपर टी या कॉपर 7 या मल्टीलोड. ये बहुत तरीके की डिवाइसेस बनी. अगर हम कॉपर टी की बात करते हैं, सो इफ़ दिस वन इज़ द यूट्रस, तो इसमें क्या होता है कि नाम जो है ये टी शेप है, कॉपर की बनी हुई है, तो कॉपर टी, कॉपर की टी शेप्ड. ऐसे ही दूसरी है कॉपर 7, तो इसका शेप अगर आप देखेंगे, ये यूट्रस है तो ये 7 शेप्ड है. तो कॉपर टी, कॉपर 7, ये बहुत अलग अलग तरीके के शेप के आ गए. फिर इसमें भी इन्हांसमेंट हुआ, ये कॉपर टी है तो इसमें बाद में फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसी रिंग्स, कुछ छल्ले दिखने लगे, और ये क्या काम करते हैं, Cu2
Cu2 पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, और ये Cu2 पॉजिटिव आयंस जो हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को ख़त्म करने का काम करते हैं। सो नाउअडेज अगर आप मार्केट में देखेंगे तो कॉपर टी और भी नाम से आएगी, जैसे Cu240 और Cu180। तो ये जो 240 है या 180 है, दीज आर द नंबर ऑफ रिंग्स। कितनी इसमें रिंग्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ये उस रिंग्स को इंडिकेट करते हैं। और ये रिंग्स का काम क्या है, ये Cu2 पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते रहेंगी, और ये Cu2 पॉजिटिव आयंस जो होंगे ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिटार्ड कर देंगे, और जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, वहाँ तक रीच नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फिर देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल प्लास्टिक सेफ डिवाइसेस आई, फिर इसका एडवांसमेंट हुआ तो Cu2 पॉजिटिव रिलीज करने वाली डिवाइस आई, CUT और Cu7 या मल्टी लोड। इसके बाद इसमें भी एडवांसमेंट हुआ तो एक और टेक्निक यूज़ की, जिसमें ये देखा गया कि Cu2 पॉजिटिव के अलावा को छोड़ के हॉर्मोन्स को रिलीज़ किया जाए। तो एक थर्ड डिवाइस आई, इसी का एडवांसमेंट है, जो रिलीज करती है हॉर्मोन्स। और हार्मोन रिलीजिंग में इसे हम थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्रिन डिवाइस भी कह सकते हैं। सो दिस वन इज द थर्ड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, और ये थर्ड जनरेशन हो गई। These can release some hormones regularly in low concentration. अब इसमें भी क्या है, जैसे इसमें हम अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं प्रोजेस्ट्रेस्ट, LNG20। अब ये LNG का भी अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है लिवोनॉन जेस्ट्रॉल। ये जो दिख रहा है आपको, लिवोनॉन-जेस्ट्रॉल is a type of hormone, is a type of progesterone hormone, and 20 means it is the amount is of 20 मिलीग्राम। तो ये सब क्या करते हैं, ये हार्मोन जो रिलीज करेंगे रेगुलरली, तो ये काम क्या करेगा, जो हम देखते हैं कि यूट्रस में जब जाइगोट या मोरूला अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल पे, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देते हैं, और इम्प्लांटेशन के बाद फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये तो फर्टिलाइजेशन को ही स्टॉप करते हैं। अगर ये जो है हार्मोन वाला केस, फर्टिलाइजेशन, या तो इसमें फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद स्टॉप करना है तो ये इम्प्लांटेशन को स्टॉप करते हैं। ये मेथड थी इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। थर्ड मेथड की अगर हम बात करते हैं, ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और हम इसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, या इसे हम बोल रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये खाने वाली चीज़ें हैं ओरल। इसमें भी हॉर्मोन्स ही हम यूज़ करते हैं, और ये देखा भी गया है कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन को अगर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए तो ये प्रेगनेंसी को रिटार्ड कर देता है। तो यहाँ पर भी ये देखा जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जनरली यूज़ करते हैं इन इंडिया मोस्टली प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। इन्हें हम पिल्स बोलते हैं, और कई तरीके के पिल्स का आपने नाम सुना होगा, जैसे माला डी है या माला एम है। ये दोनों ही प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। तो पहले तो इसको नॉर्मल एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता था प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का, किसी पिल्स के फॉर्म में, और उनको दिया जाता था। लेकिन फिर ये देखा गया कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में वुमेन्स में जो चेंज आता है हार्मोनल लेवल पे, उसी के अकॉर्डिंगली इसका कॉम्बिनेशन भी बनाया गया। इसलिए जब आप माला डी या माला एम देखेंगे तो वो 21 वो या तो 21 डेज़ की होगी, या 28 डेज़ की होगी,
21 डेज 28 डेज के लिए होगा, और हर दिन के लिए डिफरेंट टैबलेट होगी, है ना। लास्ट 7 डे इसमें जो होते हैं वो आयरन टैबलेट्स भी दी जाती हैं। तो ये उसी के बेसिस पे है जिस बेसिस पे वुमेन्स में हार्मोनल चेंज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये सब जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। हालांकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बाद में पता चले कि ये एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कई बार वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर का कारण भी बना है। इसलिए, और दूसरा, ये मिल्क के प्रोडक्शन को रोकने का काम भी करता है। इसलिए इसी का एक एडवांसमेंट बनाने की कोशिश की गई जिसमें हम प्रेगनेंसी को रिटार्ड करने के लिए केवल प्रोजेस्टेरोन का यूज़ करते हैं। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के अलावा प्रोजेस्टेरोन ओनली। और इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अनवांटेड 72। तो प्रोजेस्टेरोन ओनली के दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा कि ये प्रेगनेंसी को रोकता है, ब्रेस्ट कैंसर इसकी वजह से नहीं होता, और ये मिल्क प्रोडक्शन को रोकता भी नहीं है। ये तो कुछ मेथड्स थी, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थे। लास्ट वन हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड की। सर्जिकल मेथड इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, और ये सर्जिकल मेथड भी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम दो चीज़ें बात करते हैं, एक है वेसेक्टोमी और एक है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल में सर्जिकल मेथड है, और ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल की सर्जिकल मेथड है। जब हम बात करते हैं वेसेक्टोमी में, तो वेसेक्टोमी में क्या होता है? इन वेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ वास डिफरेंस एंड टाइट इट। वॉस डिफरेंस जो है उसका एक पार्ट को कट किया जाता है, और कट करने के बाद उसको किसी चीज़ से नोट कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म है वो सीमेन तक नहीं पहुंच पाते, और जो सीमेन होता है वो विदाउट स्पर्म होता है। तो इस केस में अगर सीमेन में स्पर्म नहीं होगा तो आप तो रिप्रोडक्शन के या फर्टिलाइजेशन के देयर इज़ नो चांस। और दूसरी चीज़ जो है ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल्स में होती है। इन ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड टाइड इट। वही फेलोपियन ट्यूब के एक पार्ट को कट किया जाता है, और कट करके इसको किसी चीज़ से बांध दिया जाता है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ ओवम को रिटार्ड कर देते हैं। जब ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांस नहीं है। इन इंडिया ये ट्यूबेक्टोमी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से ये ट्यूबेक्टोमी का यूज़ इंडिया में ज़्यादा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि या तो एबॉर्शन या ट्यूबेक्टोमी जो है ज़्यादा यूज़ होती है। कॉन्डम्स का यूज़ बाहरी देशों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अभी भी इसका यूज़ बहुत कम है। और ये इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का यूज़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और सर्जिकल मेथड में इंडिया में ट्यूबेक्टोमी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। These all are the artificial methods of birth control. इस artificial method में हम बैरियर methods को देखा, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस को देखा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, और सर्जिकल methods को देखा। इसके अलावा हम देखते हैं इंडिया में एक MTP एक्ट भी आया 1971 में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक स्पेशल एक्ट है जिसमें केवल स्पेशल कंडीशन में ही, अदरवाइज आप जानते हैं कि एबॉर्शन जो इंडिया में है उसके लिए एक लॉ बना है एबॉर्शन नहीं करवाने के लिए। लेकिन एमटीपी एक्ट कुछ स्पेशल परमिशन पे ही, कुछ स्पेशल कंडीशन पे ही एबॉर्शन कराने की परमिशन देता है। जैसे अगर बच्चे को कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स हों, या फिर वो डाउन सिंड्रोम या क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम वाला बच्चा हो, जिसके आगे भी उसके डिलीवरी के बाद
प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हों तो इस पर्टिकुलर केस में ही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के परमिशन दी जाती है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ये परमिशन बिल्कुल नहीं है और जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो थैंक यू सो मच।